हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A equals angle B. So, consider triangle ABC, or you can say right angle triangle ABC, right triangle ABC, where angle C is equal to 90 degree. It means these two angles are acute angles. राइट एंगल ट्राइंगल में 190 होता है, रिमेनिंग टू एंगल्स हमेशा एक्यूट ही होते हैं. हियर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. ओके, इट इज गिवन दैट cos A is equal to cos B. Cos A equals cos B. It is given. Now, by trigonometric ratios, cos में हम कौन से साइड्स का रेशियो देते हैं? पहले cos A के लिए कंसिडर करेंगे. दिस इज एंगल A. एंगल A की एडजेसेंट साइड्स, that is perpendicular, and hypotenuse adjacent upon hypotenuse, AC upon AB, AC upon AB, or you can write separately first. Okay, cos A is equal to adjacent upon hypotenuse. Cos B is equal to, for angle B, it is adjacent side, it is hypotenuse, BC upon AB. Cos A is equal to cos B. Cos A का वैल्यू इतना, cos B का वैल्यू इतना. cos A की वैल्यू यहां पुट करें, cos B की वैल्यू यहां पुट करें. Okay, so we get AC upon AB ये क्या हुआ, cos A का वैल्यू cos A के प्लेस पर रख दिया, इक्वल्स cos B का वैल्यू BC upon AB. Okay, so AC upon AB equals 1 minute. BC upon AB ये डिवाइड में है, इधर जाके इंटू में हो जाएगा. AC इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर है या मल्टीप्लाई में लिखी, दिस वन कैंसल्ड, वी गेट AC इज इक्वल टू BC. Okay, so in this triangle, in triangle ABC, two sides are equal. AC equals BC. AC equals BC from 1. Then angles opposite to equal sides are equal. So AC is angle A equals angle B. Angles opposite to equal sides are equal. Hence, show that angle A equals angle B. Hence it is proved. Hence it is
प्रूव। ये गिवन था, ट्रायंगल लेना था, इनको एक्यूट लेना है, मीन्स रिमेनिंग एंगल 90 लेना है। ये एक्यूट हो गए तो ये 90 ले लें। ये गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वैल्यू फाइंड करें, टू साइड्स इक्वल मिलेंगे, सो टू एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7। Question 7. If cot theta equals 7/8, 7/8, then evaluate। पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। इवेल्युएट में साइन निकालना है, कॉस और कॉट। कॉट तो गिवन नहीं है ना, कॉट तो गिवन नहीं है। कॉट स्क्वायर बोले तो सिंपली इसका स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगी। साइन और कॉस के लिए रेशियोज निकालना पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, let it is theta, ABC, okay, it is cot theta. Now in right triangle ABC, angle B equals 90, angle A equals theta. That's why cot ratio is equal to, it is given, cot theta is equal to adjacent upon opposite, AB upon BC. By comparing these two, AB upon BC equals 7/8. Okay, you can take ratios, common multiple k. So therefore AB upon BC 7k 8k। नहीं भी लिया, सिंपल रहा तो चला लेते हैं, बट ये रेशियो में कांस्टेंट लेना चाहिए। AB होगा 7k और BC होगा 8k। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, AC फाइंड कीजिए। हियर AB is equal to 7k and BC is equal to 8k in this way. Okay, AB is equal to 7k, BC is equal to 8k. Now by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. AB is 7k whole square, 8k whole square, 49k square, 64k square, 113k square. Taking square root, AC is equal to, इसका रूट फाइंड नहीं होता, 113 k स्क्वायर का रूट k. So hypotenuse is square root 113 k. Now for evaluation हमें साइन और कॉस निकालना है। कॉट तो गिवन है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू
इवेलुएट में यस साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC इक्वल्स 8K अपॉन रूट 113K and cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse AB upon AC 7K upon this one cancelled, KK cancelled, 113K, KK cancelled, it remains 8 upon root 113, it remains 7 upon root 113. In this way, sin theta cos theta. अब जो इवेलुएट करने के लिए कहा है उसको लिख लेंगे। ओके, नाउ sin थीटा cos थीटा एंड cot थीटा 3 रेशियोज की जरूरत थी, वो आपके पास है। अब करेंगे इवेल्युएशन। पहला इवेल्युएशन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक्चुअली a प्लस बी ए माइनस बी ये फार्मूला में कन्वर्ट होता है 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। साइन थीटा इज 8 upon 113 under root 113 square upon 1 minus cos square theta, it is minus a plus b a minus b a square minus b square cos square theta। cos theta का वैल्यू है 7 upon square root 113 whole square, it becomes 1 minus it is 64 square से root cancelled 113 after that 49 113। now पहले algebraic calculation क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 113 minus 64 49 upon 113 divided by 113 minus 49 that is 64 upon 113 this one cancel divide का into करेंगे ये रेसिप्रोकल होके कटेगा so answer will be 49 upon 64 in this way। ये कैसे होता है 49 upon 113 into ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 113 upon 64 in this way। okay, so इसके इक्वल टू इसको लिखेंगे आंसर में।
आंसर में दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. सो ये फर्स्ट इवेलुएट हो गया. सेकेंड में आपको पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा. कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा का वैल्यू इज गिवन 7/8. कॉट थीटा की वैल्यू 7/8. इट इज गिवन. That's why cot square theta equals 7/8 का whole square equals 49/64. This is evaluated. This is first. This is second. In this way, we have to solve the question. पहले क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे. उसके बाद में कॉट का रेशियो निकाल के ये के कॉमन मल्टीपल लेकर के पाइथागोरस थ्योरम से ये अप्लाई करो. साइन और कॉस फाइंड करो. कॉट ऑलरेडी गिवन था, इससे इसको इवैल्यूएट करो और कॉट से इसको इवैल्यूएट करो. ओके. सो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन 8. Question 8. 3 cot A is equal to 4. 3 cot A is equal to 4. 3 cot A is equal to 4. So, right angle triangle consider करेंगे. एक ट्रायंगल बनाएंगे B90 A theta in this way. In right triangle ABC, angle B equals 90, angle A equals theta. So given is 3 cot A not theta, only angle A is given, so don't write this one. Simple A, 3 cot A is equal to 4. That's why cot A is equal to 4/3. This is given. Now consider ratio is equal to 4k upon 3k. After that, find the cot A. Cot A is equal to adjacent base upon perpendicular, adjacent upon opposite, AB upon BC. Compare these two ratios. We will get AB upon BC equals 4k upon 3k. Now Pythagoras theorem find AC. AC square equals AB square plus BC square. AB is 4k plus BC is equal to 3k whole square. Therefore, AB equals 4k and BC equals 3k. It becomes 16k square, 9k square, 25k square. So, AC is equal to, taking square root, 5k. AC is equal to 5k. So, AB is 4k, 3k and it is 5k in this way. Now,
we have to calculate, हमें दिया है चेक वेक्टर 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, सो हमें tan फाइंड करना है। वैसे tan तो इसका रेसिप्रोकल भी होता है। उसके बाद चेक करना है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस था, tan, cos और sin। ओके, tan कैसे फाइंड करेंगे? cot का रेसिप्रोकल, tan A इज इक्वल टू वन अपॉन cot A, 1 अपॉन cot A का वैल्यू है 4/3, ओके, 4/3। सो tan A इज इक्वल टू 3/4। ये tan का वैल्यू मिल गया। उसके बाद निकालना है साइन और कॉस। साइन A इक्वल्स अपोजिट अपॉन हाइपो, BC अपॉन AC, 3K अपॉन 5K, that is equal to 3/5। cos A फाइंड कीजिए। cos A में एडजेसेंट अपॉन हाइपो, AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपो। बेस इज 4K, हाइपो इज 5K, K कैंसल्ड, 4/5। आपके पास tan है, sin है, cos है। अब हम चेक करेंगे इसका गिवन इज इक्वल टू ये है क्या बुक से। उसके पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं। वन माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स 1 माइनस tan A का 3/4 स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रिमूव करेंगे, 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 प्लस 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 with 16, 16 minus 9, 16 with 16 minus 9, 7/16 divided by 16 with 16 plus 9, 25/16. So 7/16 into 16/25, this one cancelled, we get 7/25। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें? नेक्स्ट कि इसका वैल्यू था दिस वन 7/25। नेक्स्ट था हमें गिवन cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद में अगर इतना ही आता है तो ये रेशो और ये रेशो इक्वल कर जाएगा। cos A कितना है? इट इज 4/5
होल स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू 3/5 होल स्क्वायर, it becomes 16/25, it becomes 9/25, 16 minus 9, 7/25, let it is 2, let it is 1, from 1 and 2 we can say that these both are equals, that's why this one here is equal to ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ये यहां पर लिखे, ये हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ये इक्वल है या नहीं है. यस इट इज इक्वल फ्रॉम 1 and 2 इट इज इक्वल. ओके ठीक है. सो इस तरह से इसको करेंगे. कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग होना, प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर्स वगैरह फाइंड करेंगे. सो एक दो बार प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा रहेगा, स्मूथ हो जाएगा. ठीक है. सिर्फ लिसन, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, सुनने के बाद समझने के बाद खुद बना के देखना काफी इंपॉर्टेंट है. ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस, काफी प्रैक्टिस रिक्वायर करता है. ओके. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन 8 हो गया, 7 हो गया. कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको. नाउ क्वेश्चन 9 और 10 बचा है. ये क्वेश्चन 11 आप ट्राई करेंगे. सो आज समय बहुत कम है, 2 मिनट में तो होना पॉसिबल है नहीं. सो आज हम यही रुकते हैं और नेक्स्ट पीरियड में 9, 10 पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे. सो हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, गुड डे, गुड बाय.